So, Srila Prabhupada Lilamrita Ki Jai. Srila Prabhupada, we're reading from Srila Prabhupada Lilamrita. This is India Revisited, Part 1. And we will read for the next 5 minutes. Srila Prabhupada, accompanied by his 2 disciples, again visited Swami Bon. Riding to Swami Bon's institute by rickshaw, Prabhupada told Achyutananda that Swami Bon had shared the institute as an academy of Vaishnava studies, but had affiliated with Agra University because the institute had not been bringing in any money. Now Swami Bon had money, but the institute had become an ordinary school, devoid of spiritual value. So this is what happens when you associate with the university. You have to compromise on your principles. So now Swami Bon, disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, god brother of Srila Prabhupada, he started this university, but because it did not bring any money, now with Agra University, it started bringing money, but now it did not have any spiritual value. As Srila Prabhupada and his disciples sat in Swami Bon's parlor, Bon Maharaj made it clear, although he would not donate land for Prabhupada's American house, Prabhupada's students could come and study in his institution. Previously, Prabhupada wanted some land to make Prabhupada's American house for his American disciples. Achyutananda, he suggested, could be the first one. Swami Bon then took them to the main building to visit a class in session. Instead of seeing Pandits and Brahmacharis studying Sanskrit as they had expected, Prabhupada's disciples saw boys with thin mustaches and giggling girls. Prabhupada lectured and then asked Kirtananda to play the Hare Krishna record. After a few minutes, Bon Maharaj told Kirtananda to stop the record, but Kirtananda, seeing Swamiji enjoying the record, let it play. Achyutananda, we walked around the place and I thought, this is just a mundane school. I don't want to go here. If I could learn Sanskrit and live at the Radha Damodar temple, then I could have a nice time in India. So these disciples, they had already rejected big universities in USA just to come here and see another university over here with a spiritual name. So they decided that they don't want to stay in such a mundane school. They continued the tour of their facilities, and after seeing the dormitory, Prabhupada doubted whether his American disciples could endure the austerity and academic studies. It seemed that one of the 2 boys was already sick. First, Kirtanananda Swami had gotten dysentery. Then something had been wrong with Achyutananda's Swami. Then they both been exhausted with the heat. On the whole, Srila Prabhupada rode to Rupanuga in New York. The American boys who come here first become depressed, so I do not know how far our American house in Vrindavan will be successful. His boys were not particularly studious or austere. Besides, both Kirtanananda Swami and Achyutananda had developed a definite dislike for the rector of the Institute of the Oriental Philosophy, and Srila Prabhupada obviously had reservations about the place. You can go and study there, Prabhupada told them, but don't live there. Live at Radha Damodar temple and go. You can get a bicycle and go there. Gradually, the idea of immediately acquiring an American house in Vrindavan began to dwindle. Prabhupada needed his own place for the disciples, and that would take time. So Prabhupada has decided to make his own place, not to rely on the establishment of Bon Maharaj. With regular medication, massages, rest, and the heat of Vrindavan, Prabhupada felt himself recovering. By mid-September, he declared himself 90% fit
to return to United States. He predicted that he would be there by the end of October. B.R. Sridhar Maharaj, Prabhupada's god brother, whose ashram was in Navadvip, West Bengal, wrote to invite Prabhupada to spend the month of Kartik with him at his ashram and join him for his Vyas Puja celebration. Srila Prabhupada liked the idea of going to the holy land of Navadvip, where Lord Chaitanya had spent his early years, and seeing his god brother. His god brother invited him. His god brother was having his Vyas Puja in Mayapur and invited Prabhupada. He also wanted to visit Delhi again and inquire about printing his books. Swamiji Achyutanand asked, "When you go to Navadvip, am I supposed to stay here in Vrindavan and study? Don't you want to see the birthplace of Lord Chaitanya?" Prabhupada asked. Achyutananda said he did. So both Prabhupada, Kirtananda Swami and Achyutananda left Vrindavan together and returned to the Chippiwara temple in Delhi. For Prabhupada's two disciples, life at Chippiwara temple was hard. New Delhi was blazing hot and lacked the charm of Vrindavan. So Vrindavan was very special. But when you came to this New Delhi, it was very hot. There was water only for 2 hours a day. There was water crisis in New Delhi, shortage of water. So you only had water 2 hours, early in the morning, and only a slow trickle. They could only fill 2 clay jugs for Prabhupada's room and several buckets for his bath and their own. And then there would be no more water for the rest of the day. A mongoose ran freely through the buildings. Do they eat snakes? Do the mongoose eat snakes? Achyutananda asked. Yes, the mongoose eat snakes, said Srila Prabhupada. They eat rubbish, garbage, they eat everything. Prabhupada, who regarded the heat, the lack of water, and even the mongoose as normal, was undisturbed. Several young Indian musicians in the adjacent room regularly played cinema music on their electric organ, bongo drums and electric guitars, rehearsing for a dance. Prabhupada tolerated it. So we will end over here. So we have heard it's very difficult for Prabhupada's American disciples to stay in New Delhi. They could tolerate Vrindavan. Vrindavan had a very beautiful atmosphere, but New Delhi is a city, it's got its noise, it's got overcrowding and the heat, and we will continue again tomorrow. So we will start with Srimad Bhagavatam, and we are reading currently from Srimad Bhagavatam, and I believe we are on, yes, Lord Krishna shows the universal form. Right now, we have been listening from Dr. Guru Sumana Mataji, how Garga Muni is in the cowshed, the Goshala, and they are going to give Lord Krishna, they are giving Lord Krishna his name. They've given Balaram his beautiful name, and they have been, now is the Naam Karan for Lord Krishna. See, Lord Krishna takes all the sanskars. He comes as an ideal human being, and he is taking all his sanskar and he's listening to his glories. Gargamuni is speaking in codes. He's speaking in codes secretly. He knows this is Krishna, and indirectly Nanda Maharaj is also hearing. So we're reading from text number 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8. Lord Krishna shows the universal form. And we're reading from text number 16. Esha Vaha Shreya Adhasya Gopa Gokula Nandanaha Anena Sarva
यूयं manjastarishyata, यूयं manjastarishyata. Word for word. Eshaha, this child. Vaha, for all of you people. Shreya, the most auspicious. Adhasyat, will act all auspiciously. Gopa, Gokula, Nandana, just like a cowherd boy, born in the family of cowherd men, as the son of the estate of Gokul. Anena, by him. Sarva Durgani, all kinds of miserable conditions. Yuyam, all of you. Anjaha, easily. Tarishyata, will overcome. Translation and purport by His Divine Wish, Lahesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. So, Garga Muni is continuing. Yesterday, Garga Muni had said, for many reasons, these beautiful sons of yours sometimes appeared previously as the son of Vasudeva. Therefore, those who are learned sometimes will call this son Vasudeva. For this son of yours, there are many forms and names according to his transcendental qualities and activities. They are known to me, but people in general do not understand him. And today, Esha Vashreya Adhashyat Gopa Gokula Nandana Annena Sarva Durgani Yuyam Anjas Tarishita. Translation: to increase the transcendental bliss of the cowherd men of Gokul, this child will pray, always act auspiciously for you, and by his grace only you will surpass all difficulties. To increase the transcendental bliss of the cowherd men of Gokul, this child will always act auspiciously for you, and by his grace only you will surpass all difficulties. So, very beautiful verse. And the purport by His Divine Wish, Lahesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Purport. Srila Prabhupada explains that for the cowherd men and cows, Krishna is the supreme friend. Therefore, Lord Krishna is worshipped by the prayer Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. His pastimes in Gokul, his dham, are always favorable to the Brahmins and the cows. His first business is to give all comfort to the cows and the Brahmins. In fact, comfort for the Brahmins is secondary, and comfort for the cows is his first concern. Because of Lord Krishna's presence, all people will overcome all difficulties and always be situated in transcendental bliss. Om Jnanatimirandhasya Jnananjala Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapandantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapatakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarajadam Sahagana Raghunatham Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Shri Vishakanatamshta. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchkalpa Triyavasya Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna.
सबको स्वागत है आज श्री राधा दामोदर मंदिर। आज का तारीख फीजी में है 24 मई 2025 और आज सिंगटोका टाउन में हरिनाम संकीर्तन है। तो सबको इनवाइट करते हैं प्रथम कि आप आने यहाँ पर और हरिनाम में भाग लीजिए। तो आज का जो कथा है वो है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को नामकरण हो रहा है। और नाम देते हुए गर्गा मुनि कहते हैं, नाम तो दे चुके हैं, गर्गा मुनि ने नाम दिया है और इतना सुंदर नाम दिया। पहले प्रथम बलराम जी को नाम दिया है और टेक्स्ट नंबर 13 में बताते हैं कि आपका पुत्र कृष्ण जो है वो आता है अलग अलग अवतार में, अलग अलग युग में। 3 जो कला है वो धारण किया है। और कौशल युग में बताते कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णन संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रयर यजंती ही सुमेधशः। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इसका ऑलरेडी गर्गा मुनि ने कह दिया है कि आएंगे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के भी विषय में गर्गा मुनि ने प्रेडिक्ट किया है कि वो व्हाइट, रेड, येलो, ब्लैक कला में आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का विषय में बताते हैं कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण येलो कला में आते हैं। और कलयुग में जब जब श्री कृष्ण भगवान आते हैं तो कृष्ण वर्णन तुषार कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ब्लैकिश कलर नहीं करते कृष्ण, लेकिन वो स्वयं श्री कृष्ण है और यही कृष्ण आते हैं। तो आज हरिनाम संकीर्तन है, तो सब आकर श्री चैतन्य महाप्रभु के जो युग धर्म है उसमें भाग ले सकते हैं। आज का जो मुख्य टॉपिक है इज ऑन काउस। भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर है? गौशाला में। और कभी भी बच्चे का नामकरण होता है तो जो बहुत करीबी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आते हैं। मस्ट हैव ऑल द ब्लेसिंग्स। क्यों हम लोग नामकरण करते फैमिली के साथ? टू गेट द ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर गौशाला में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे गैया के सामने अपना नाम पुकारा। और अगर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का धाम, तो उसका धाम में सब समय गाय होते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा गोकुल, गोलोक। सुबह में गोलोक बिहारी होते हैं, गोलोक, गोकुल। तो हम लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे उसके पास सब समय गाय होते हैं। तो आज के विषय में बताते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण वो सबके मित्र हैं, खास कर जो ग्वाले हैं, जय जय गोपी, जय जय ग्वाल, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो आज हम वृंदावन धाम चलते हैं जहाँ पर गोपी है, गाय है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ये प्रार्थना अर्पण किया जाता है। और कौन सा प्रार्थना है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रार्थना है। इसके माने हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो गोपिया गाय और ब्राह्मण को खुद वर्शिप करते हैं, उसको हम वर्शिप करते हैं। और यहाँ पर बताते हैं भगवान के धाम में वो सब समय बहुत ही फेवरेबल होते हैं ब्राह्मण के और गाय के। भगवान श्री कृष्ण के फर्स्ट बिजनेस है, क्या बिजनेस है? कि गाय है और ब्राह्मण है उनको ख्याल करो, उनको सेवा करो।
और यहाँ पर बताते हैं कि फर्स्ट गाय को सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग देख सकते हैं वृंदावन लीला में भगवान श्री कृष्ण शुरू से अगर आप देखेंगे जब जब उसके ऊपर एक्चुअली सारे असुर से पहले भी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को क्या किया, अभिषेक किया। और जब अभिषेक करते हैं तो कौन चीज़ यूज करते हैं, गाय का सारा जो एक बनाते हैं गाय का दूध से, गाय का जो दही माखन ये सब कुछ से, और अभिषेक में तकरीबन गाय मूत्र ये सब पंचगव्य उसको कहा जाता है। 5 चीज जो गैया से आता है उससे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक, प्रथम अभिषेक किया जाता है। और जब हम लोग रोज अभिषेक करते हैं बहुत भारी मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के तब अभिषेक हुआ जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो उस दिन क्या होता है, पंचगव्य का सारे चीज से भगवान का अभिषेक। तो शुरू से भगवान जैसे पैदा होते हैं वैसे उसको अभिषेक किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण अगर देखें तो जब जब उसका कोई भी असुर आकर वध करते हैं तो सारे जो गोपियाँ बहुत ही इनोसेंट नादान थे, वेरी इनोसेंट। और कृष्ण भगवान चाहते कि हम लोग इनोसेंट रहे। अगर हम लोग में चालाकीपन रहेगा तो कृष्ण ये सब चीज नहीं लाएगा। चालाकीपन तो ज़्यादा शकुनी लोग के पास रहा हस्तिनापुर में, लेकिन वृंदावन में व्यक्ति एकदम सरल है, एकदम सिंपल, खाली न जाने हम लोग कृष्णा की सेवा करता। तो जब भी कृष्णा कोई असुर के मारे और उनके तनिक भी ऐसे समझ में नहीं आए कि कृष्णा कितना बड़ा है, कृष्णा भगवान तो नहीं है। तो बोले हम लोग फर्स्ट थिंग हम कौन सी करे, देखिए इसके तो कुछ चोट नहीं लगे। और फिर एकदम भगवान को धन्यवाद देते हुए लोग फिर गैया के पूंछ से भगवान सब नजर उतारे, भगवान से अच्छा से नजर उतारे, सब गैया के पंचगव्य के वस्तु से भगवान के सब नजर उतारे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जैसे जन्म लेस उस तरह वही टाइम पे कंस के मारे भगवान श्री कृष्ण पूतना को ऐसे मारे, उसके कोई जरूरी नहीं रहा रात के चुप के जाकर मथुरा से गोकुल जाने के लिए, कोई जरूरी नहीं रहा। वो वहीं रहकर काहे हो गए इस वृंदावन, वो मनता रहा प्रेम। वृंदावन में एक चीज है जहाँ कहीं नहीं मिली, जो है भगवान के पवित्र प्रेम। तो इस शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम को अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गए। और सबसे ज्यादा चीज वहाँ क्या है, 9 लाख गैया। 9 लाख इज अबाउट 900,000। फीजी से ज्यादा पॉपुलेशन गाय की है, इतना ढेर गैया सोचो, नीली क्लोज टू 1 मिलियन। तो इतना ढेर गैया लोग रहा, कोई कुछ एक गैया नहीं सके समारे। भगवान श्री कृष्ण के इंचार्ज बेबीज, छोटा रहा तो खाली ग्वाल बाल के देता रहा, और फिर जब बड़ा हुए तो फिर सब गैया। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत इजी से सबके बुलाए लेता रहा, खाली बांसुरी बजाता रहा, और बांसुरी में जो धुन रहा सब गैया लोग के नाम रहा, और सब गैया लोग अपन अपन नाम सुन के आता था। तो जब दिन भर सोचो कृष्ण गैया से इतना लव करता रहा कि दिन भर वो गैया लोग के साथ रहता रहा, और हम जिद करता रहा। जब उसके गैया चराई के नहीं मिलता रहा तो मनता रहा, बोले कि मनता जाए गैया चराई, प्लीज हमें जा मौका दे दो। तो फिर यशोदा मैया फिर बोले अच्छा जाओ। बहुत फिर आप लोग सुना कि गोपाष्टमी के दिन फिर श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, गैया चराते हैं, और होल डे ही इज विद द काउस लुकिंग आफ्टर, गैया का सेवा करते थे। और ऐसे जैसे जगह जाते थे
जहाँ पर अच्छे अच्छे ग्रास होते थे, अच्छे अच्छे जो चारा होता था, गाय का चारा होता था, अच्छा फ्रेश चारा होता था, भगवान श्री कृष्ण ऐसे जगह जाकर गैया का चारा करते थे और वो मेक श्योर करते थे कि सब गैया लोग आए हैं ना। तुम लोग सुनते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, एक गैया जब नहीं आते हैं तो कृष्ण भगवान जाकर वो गैया जो है उसको खोजते हैं। गोपाल है उसका नाम। तो आप देखिए कृष्ण भगवान के सारे नाम, गोपाल है, गोविंद है, कितने नाम भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन, सारे नाम भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन, गिरिधारी, ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाम जो है गैया से रिलेटेड है। और जो गो है बहुत ही शुभ होते हुए कोई साधारण जानवर नहीं है, उसको गैया मैया भी कहा जाता है। और वो सबसे भारी गिफ्ट है, जिसे अगर आप किसी का हित के लिए कार्य करते हैं तो आप उसको कोई गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तो कुछ अच्छा कार्य किया नहीं है, भगवान से विरोध कर कर इस मृत्यु संसार में आ चुके, लेकिन श्री कृष्ण भगवान हमको भूले नहीं है। इसीलिए वो अपने सबसे चहीते गैया को भेजते हैं, तुलसी महारानी को भेजते हैं, जमुना को भेजते हैं, स्वयं आते हैं। और क्यों आते हैं? हमको लेके जाने के लिए। तो छोड़ देते हैं गैया। गैया जो है उसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए गैया का पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। कलयुग में तो बहुत ही, हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन कलयुग में बहुत ही एक्सप्लॉइट किया जाता है गाय को। गाय को मैया की तरह नहीं, केवल बिजनेस की तरह दिखते हैं, है ना। उनको बहुत इल ट्रीट करते, इसीलिए कलयुग में इतना दुख आता है। अगर आप माँ बाप को दुखी करेंगे तब आपको रिएक्शंस यही लाइफ में आ जाता है। कोई अपन मैया के अच्छा से ट्रीट नहीं करे और उनकी यही लाइफ में रिएक्शंस आए जाए। तो जो गैया को भी नहीं ट्रीट करे तो क्या होता है, पूरा देश, पूरा दुनिया में कितना अभी हम लोग देखते हैं, कभी फ्लडिंग होता है तो कभी वो होता है। अभी हम लोग ऐसे बैठे हैं, इतना सुकून से यहाँ बैठे हैं, सेम टाइम ना कितने लोगों मर रहे हैं। इतना भारी गाय का कत्ल होता है तो कितना भारी पीपल को सफा करना पड़ता है। तो इसीलिए गाय जो है वो बहुत ही वर्शिपेबल है और हमको सब समय उनका सम्मान करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान के सारे लीला में अगर हम देखेंगे तो गैया की सेवा होते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लीला में बहुत गाय नहीं है, क्योंकि वो आते हैं इस कलयुग में। सबसे भारी जो गिफ्ट है वो देते हैं, वो है हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में थे, वो इतने ढेर गाय का सेवा, गौशाला एस्टेब्लिश किया है। लेकिन हम यहाँ पर वृंदावन में भी देखते हैं, कल हमने सुने कि कितने ढेर वृंदावन में वहाँ पर गौशाला था, लेकिन सब क्या किया, वो सब बेच देते हैं। थोड़ा पैसा के लिए कितना ढेर गौशाला बेच देते हैं, और इसीलिए जो गैया है वो अब सड़क पे आ चुकी है। अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो इतना ढेर जो गाय है, दे आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी पास्चरिंग ग्राउंड्स। सब ग्राउंड वो बेच देते हैं। इसीलिए ये सब चीज देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गाय को तो ये सम्मान नहीं कर पाएंगे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं और क्या एस्टेब्लिश करते हैं, हरिनाम संकीर्तन। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और हमको कुछ गिफ्ट्स देते हैं। इन ईच युग ही गिव्स अस सम गिफ्ट्स। और कैसे गिफ्ट्स देते हैं, ऐसे गिफ्ट्स जिससे हम मनुष्य अपना जीवन को सुधारे और भगवान के पास वापसी, घर वापसी यही को कहा जाता है। घर वापसी केवल कन्वर्जन नहीं है हिंदुइज्म में। घर वापसी माने वी गो बैक होम, बैक टू आवर फादर, बैक टू लॉर्ड कृष्ण। तो ये घर वापसी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमको ऐसे गिफ्ट्स देते हैं। और उसने देखा कि इस कलयुग में
व्यक्ति एकदम भारी सिंपल है। गाय को तो छोड़ो, अपने ओन माँ बाप को कदर नहीं करते हैं। पेट में बच्चा जन्म नहीं लेता है उसको मार देते हैं, तो गाय को तो छोड़ो, उसके तो बहुत अलग सा ट्रीटमेंट मिलता है। तो कलयुग के व्यक्ति लोग के मध्य नजर देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि इस युग धर्म में हरिनाम 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 एव केवलम कलो नाश्त एव नाश्त एव नाश्त गतिर अन्यथा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में 11 कैंटो चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 32 में बताते हैं, कृष्ण वर्णम कृष्ण कृष्ण संगोपंगस्तर पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधशः। हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखेंगे कि more emphasis, चैतन्य महाप्रभु paid a lot of emphasis to cow protection, लेकिन वो युग धर्म स्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं जो कृष्ण वर्णन ऋषा कृष्ण, अकृष्ण माने कि कृष्ण के कला नहीं, येलो रूप लेके आते हैं, संगोपांगस्तर पार्षदम, और क्या करते हैं? एस्टेब्लिश संकीर्तन यज्ञ प्रये यजंती ही सुमेधशः। तो ये यज्ञ को स्थापित करते हैं, और ये यज्ञ हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा जो फिजी जो नामक द्वीप है, इतना छोटा कंट्री है, छोटा सा मुल्क है, इसका जो पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन है, लेस देन 10 लाख पीपल है यहाँ पर, और लेस देन 1 मिलियन, सॉरी 100 लेस देन 100 लाख पीपल, और यहाँ पर हमारे पास इतना छोटा देश में पर कैपिटा इतना ढेर मंदिर है। कोई कंट्रीज में 10 मिलियन पीपल है और एक मंदिर है। ढेर कंट्रीज में कोई कंट्री में तो 100 मिलियन पीपल है, तब जाके एक हरे कृष्णा मंदिर मिलेगा। लेकिन हम लोग के छोटा सा देश में 1 मिलियन पीपल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर पे आपके मंदिर मिलेगा। अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाए तो थोड़ा देरी में आपको तुलसी महारानी का पौधा मिलेगा, और या तो हनुमान का झंडा दिखाने को मिलेगा। ये सब चीज़ हमको कृष्ण को रिमाइंड कराता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस ये इसको हमको रिमाइंड कराता है, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे सबसे प्रिय मित्र है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ना, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप हम लोग के हृदय में बैठी से, एज आवर बेस्ट फ्रेंड। हम लोग के सबसे बेस्ट फ्रेंड कहाँ बैठी से? विद अस। कब बैठी से? 24 आवर्स अ डे। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करते हैं काउस के बारे में। तो यहाँ बोलते हैं गोकुल धाम में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? इज वेरी फेवरेबल टू द ब्राह्मण्स। भी भगवान के नाम गिविंग संस्कार है। जैसे छोटा बेबी लोन बोर्न होता है ना, तो यूजुअली जब बेबी लोन बोर्न हो तो पंडित आकर राशि देखते हैं और बोले ओ नाम ऐसे मांगो पढ़ो ऐसे। तो इस तरह से जब नंद बाबा जी के घरे कृष्णा आए तो उसने एक उस समय के सबसे जो एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष गर्गा मुनि को पुकारा, और गर्गा मुनि भविष्य देखते हैं और कहा ये भविष्य तो भगवान का भविष्य है। छोटा बच्चा का हाथ देखता है लेकिन भविष्य देखते हैं। बोले तुम्हारे जो बच्चा तो कमाल का है, ये बच्चा जो है पिछले युग में भी आते हैं, रामचंद्र बन के आते हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव बन के आते हैं। तो इस तरह से उसको बतलाते। लेकिन नंद बाबा जी के तो जैसे कभी कभी टीचर लोग कुछ पढ़ाए हम लोग के हार्ड टॉपिक रहे ना हाई स्कूल में, कुछ समझ में नहीं आए, मूड के ऊपर से चलाए जाए हम लोग बस टीचर के, लेकिन हैप्पी करे के लिए बोले जी समझते हैं।
हम लोग के तो माइंड कहाँ है, हम लोग अभी खेलना है, अभी हम लोग लंच जाएगा, हम लोग खेलेगा, हम लोग के पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं। इसी तरह से नंद बाबा जी खाली अपन लड़का के नाम सुने और बस सोचे हम घरे जाएगा, उसके साथ कितना ढेर पास टाइम्स हुई, वत्सल्य भाव में पिताजी सोचे कौन सी करेगा, तो इतना उसके एक्सप्लेन करे कि आपके लड़का राम बनीस रहा और भविष्य में चैतन्य महाप्रभु बनी, कृष्ण वर्णन दुषा कृष्ण संगो पंगस्त पर्षदम, बताए कि भविष्य में आपके लड़का संकीर्तन यज्ञ करी, सब चीज बताए। लेकिन ये नंद बाबा जी के एकदम ध्यान में नहीं। और यहाँ पर आज के मुख्य श्लोक में बताए कृष्णा इज आवर बेस्ट फ्रेंड। हम लोग सब कोई फ्रेंड्स खोजता है दुनिया में, सब कोई मांगे अपन दिल के बात करे, सब कोई मांगे हैप्पी रहे, लेकिन यहाँ पर बताते हैं दैट भगवान जहाँ पर रही, भगवान जहाँ पर स्थापन हुई, तो वहाँ पर जितना दुख तकलीफ है वो सब खलास हुई। जितना दुख तकलीफ हम लोग के जीवन में वो सब खलास। सबसे मेन दुख तकलीफ कौन सी हम लोग कि हम लोग भगवान के भूल गया, दैट इज द मेन तकलीफ। वो तकलीफ के बाद तो फिर और तकलीफ आई, वो तकलीफ के बाद फिर और तकलीफ आई। तो हम लोग एटलीस्ट इतना भाग्यशाली है कि हम लोग के पनाह मिला है, शेल्टर मिला है। ह्यूमन बींग कौन सी नीड करे, फूड नीड करे, क्लोथिंग नीड करे, शेल्टर नीड करे, और यहाँ पर कृष्ण भगवान शेल्टर देते हैं। कृष्ण भगवान स्वयं के शेल्टर देते, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण हमारे फ्रेंड है, वो हमको दुखी नहीं देखना चाहते। और धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे कि ये शेल्टर क्या है, कृष्ण का चरण। तो हम लोग सब कृष्ण के चरण के शरण लेके एंड करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रवण भगवान की जय।